Dear students, a very wonderful good morning to all of you. We are going to start our new syllabus, and in our today's class I am going to teach you noun. In our previous lecture I had already told you parts of speech, and noun is also mentioned as one part of speech. In our today's lecture, we will pay full attention only on noun. Now, what's noun? A noun is the name of a person, place, or thing. Is this clear to you? What is noun? Noun is the name of a person, place or a thing. वह शब्द जो किसी भी पर्सन के, व्यक्ति या औरत के, स्थान के या किसी भी चीज के बारे में हमें बताते हैं, उसके नाम को बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं उसको. Is this clear? Yes. Now, for example, Ram goes to school. In this sentence, Ram is the name of a person. So Ram is noun and school is also noun. क्योंकि राम जो है वो किसी पर्सन का नाम है, स्कूल जो है वो किसी जगह का नाम है. Then Ram goes to school. Ram is the name of a person, school is the name of a place. So now what is noun? Noun is the name of a person, a place or a thing. Now there are 5 types of noun. 5 kinds of noun. Can you tell me the name of 5 kinds of noun? Yes. The first one is proper noun. Second is common noun. Third is collective noun. And fourth is material noun. Yes. And fifth is abstract noun. Got my point? There are 5 kinds of noun. The very first one is proper noun. Second is common noun. Third is collective noun. Fourth is material noun. And fifth is abstract noun. Is it clear to you, students? The definition of noun and its kinds. Yes. Now I will define these kinds one by one. Please pay attention. Now tell me the name of the first kind. Proper noun. Yes. Now what is proper noun? Proper noun means a proper noun, the word which is used for special thing, special name, special person, special name. Proper noun always always begins with
capital letter means Delhi, Punjab, Harpreet, so on. प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? वो शब्द जो किसी स्पेशल चीज के लिए यूज किया जाता है, भले ही वो स्थान हो, भले ही वो कोई चीज हो, भले वो किसी स्टेट या किसी भी जगह का, किसी भी पर्सन का नाम हो, जो स्पेसिफिकली यूज किया जाता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। उसकी एग्जांपल्स हैं जैसे दिल्ली, दिल्ली की हम डी बड़ी रखेंगे, पंजाब, पंजाब की पी बड़ी रखेंगे, हरप्रीत, हरप्रीत की एच बड़ी रखेंगे। जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर नाउन्स आ जाते हैं, देन आप क्या करोगे? आप सभी प्रॉपर नाउन्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे, बट उनमें जो कंजंक्शंस या प्रपोजिशंस या आर्टिकल्स यूज किए जाएंगे वो सभी स्मॉल लेटर्स रहेंगे। इज दैट क्लियर? यस। द सेकेंड इज कॉमन नाउन। अभी कॉमन नाउन कौन सा होता है? A noun that is used for same kind of things. A noun that is used for same kind of things means जो शब्द एक ही प्रकार की चीजों के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज सिंगिंग। अभी लड़की, लड़की तो कोई भी हो सकती हो, देन जो गर्ल है वो कॉमन नाउन है। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द वर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। अभी जो पंछी है, सभी पंछियों को हम पंछी बोलते थे, अभी जब उनका नाम लेंगे जैसे पिजन हो गया, पैरट हो गया, तभी वो प्रॉपर नाउन में आएंगे। अभी जब हम उसको वर्ड बोलेंगे देन वो क्या रहेंगे? वो कॉमन नाउन रहेंगे। अभी जे हमारे कॉमन नाउन्स है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अ नाउन दैट इज यूज्ड फॉर सेम काइंड ऑफ थिंग्स, द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द सेम काइंड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। Now, what is the third type of noun? Yes, collective noun. Does collective word make any sense to you? Yes. Collective noun. Collective nouns means वह शब्द जो किसी समूह के लिए, किसी ग्रुप के लिए यूज किए जाते हैं, उनको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। A collective noun is the name given to a group of people or things. People or things. For example, a team of players टीम ऑफ प्लेयर्स, इसमें टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। एंड अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा? कलेक्टिव नाउन take everything, takes everything under the one group, under the
one group. So, what is collective noun? A collective noun is the name given to a group of people or things. Collective noun takes everything under the one group. For example, a team of players. किसी भी टीम के खिलाड़ी हो, वो आएंगे तो एक टीम में ही, भले ही कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी हो, भले ही कोई बहुत ही कमजोर खिलाड़ी हो, तो हम उनको अलग अलग नहीं बोलेंगे, हम उनको उनका एक ग्रुप बोलेंगे. ग्रुप को क्या कहते हैं? टीम. देन टीम इज कलेक्टिव नाउन. अ क्लास. अभी आप सभी बच्चे एक रूम में बैठे हुए हो, एक क्लास में बैठे हुए हो. अभी आपको एक एक स्टूडेंट को तो नहीं बोला जाता ना कि आप. पूरा क्या बोला जाता है? 7th क्लास, 5th क्लास, ऐसे ही अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर टू यू? ओके. नाउ द फोर्थ इज मटीरियल नाउन. अभी मटीरियल नाउन कौन सा होता है? मटीरियल नाउन, a noun. A material noun is the name of the material of which a thing is made. A material noun is the name of the material of which a thing is made. अभी वह कोई भी धातु, कोई भी द्रव्य पदार्थ जिससे कोई दूसरी चीज बनती है, उसको क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन्स के एग्जाम्पल हैं गोल्ड इज द प्रेशियस थिंग. अभी गोल्ड के गहने बनते हैं, आभूषण बनते हैं, तो गोल्ड क्या है? मटीरियल नाउन है. कॉटन इज वाइट इन कलर. अभी कॉटन क्या है? ये भी मटीरियल नाउन है, क्योंकि कॉटन के कपड़े बनते हैं, कॉटन का यूज होता है और चीजों को बनाने के लिए. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन यू काइंड नंबर 5 एंड दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स abstract noun. An abstract noun is the name of feeling of a quality. Quality means gone. Feeling, an action and a state. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई भी गुण, वह चीज, वो भावना आ जाती है जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको हम फील कर सकते हैं. जैसे क्वालिटी, कोई गुण होता है, हम हमारे बीच में कोई अच्छी क्वालिटी होती है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं. कोई एक्शन है, उसको हम देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकते. ऐसे ही स्टेट होती है. फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. अभी ट्रूथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम महसूस कर सकते हैं. एक फीलिंग होती है कि ट्रूथ है, सत्य है. ओके. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी.
अभी इसमें ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। ऑनेस्टी को हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रूथ है, ट्रूथ को हम फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक नाउन? It is the most important topic of our English grammar. Without this topic, you cannot get success. So, please pay attention on this topic. Now, you will revise with me. What is the definition of noun? Noun is a word that is used for the name of a person, a place, or a thing. How many types of noun? There are 5 types of noun. The first one is proper noun. The second is common noun. Third is collective noun. Fourth is collective noun. No. Fourth is material noun. And fifth is abstract noun. Yes. You will revise all these kinds with description, with its definition, and along with its examples. So students, this is your today's topic, and now you will solve the given exercise of this topic. Thanks. Have a nice day.